Hello, friends. Welcome back again on the I Have a Vision Academy YouTube channel. In short, I Have Academy. So, without any further ado, let's jump straight to today's topic, that is structure of atmosphere. Now, structure of atmosphere can be studied under two heads. The first head is based upon the chemical composition, and the second head is in regards to variation in temperature. So these are the two heads. Now in the chemical composition, this will be a short class. We will be discussing only structure of atmosphere. So सारा ध्यान इधर ही. So these are two subcategories in the under the head chemical composition. Homogeneous area or region means where the composition of gases are same. बड़ा ध्यान से देखना. And here composition differs. Now what is the meaning of composition is same? The examples of homogeneous region is troposphere, stratosphere and mesosphere. What are these troposphere, stratosphere, mesosphere? We will be studying all these phrases or words under the temperature head. And here thermosphere and exosphere. Now understand, अगर आप ज़मीन पे हो अभी तो गैसेस की कंपोजिशन कुछ है. 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है या 0.04% है. सो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ गैसेस. नाउ इफ यू गो अप इन द एयर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 2.5, 3, 4.5. So the composition of all the gases, nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, xenon, krypton, all these will remain same. नाइट्रोजन कुछ मात्रा से घट रही है, उतनी ही मात्रा में ऑक्सीजन घट जाएगी, उतनी में ही आर्गन और अपनी क्या होती है कार्बन डाइऑक्साइड. सारी गैसेस एक ही कंपोजिशन में, एक ही रेशियो में रहेंगी. तो इसका मतलब होता है कंपोजिशन इज सेम. दैट्स वाई होमोस्फियर, ये जेनस लिख दिया मैंने, होमोस्फियर एंड हेट्रोस्फियर, सही कर लेना. So composition is same in homosphere. Examples are troposphere, stratosphere, mesosphere. In the heterosphere, these composition varies according to the height. So that's why the upper layer, the most upper layer of the structure in atmosphere, that is thermosphere and exosphere. So these two uppermost layers form the part of heterosphere. So ये इतना important नहीं था, अब important है ये. तो आप अपने मेरे ही साइड में एक मैप, एक डायग्राम देख पा रहे होगे. हालांकि वो डायग्राम आसान है, हमको भी बनाना आना चाहिए, फिर भी यहाँ देख लीजिए, आपका टाइम वेस्ट कम होगा. याद कैसे करना है सबसे बड़ी बात. सो वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इज अरेंज इन नंबर ऑफ लेयर्स इफ वी आर स्टडिंग इट अंडर द हेड ऑफ टेम्परेचर. कैसे याद करना है? NCERT trick, take
some milk, then egg. So what is the acronym? Take some milk then egg. क्या बना रहे हैं हम? एग शेक बना रहे हैं, ठीक है. तो एनसीईआरटी की ट्रिक है, आज आराम से याद हो जाता है. टेक सम मिल्क देन एग. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर. सो दिस इज द क्लोजेस्ट रीजन और लेयर इफ यू आर टॉकिंग इन रेस्पेक्ट ओवर अर्थ्स क्रस्ट. तो यहाँ हम हैं खड़े. अब नाउ द एलिवेशन इज इंक्रीजिंग एंड हियर इज द स्पेस, ठीक है. ब्लैक दिखता है स्पेस, और यहाँ हमारा प्यारा अर्थ, हरियाली. और यहाँ हम खड़े हैं ऑब्जर्विंग आवर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर एज वेल एज स्टडिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम्स. ट्रोपोस्फियर, it is the lowest layer or lowermost layer in the structure of atmosphere. All the weather related phenomena can be observed in troposphere. In the previous class, if you recall something, that below 2 kilometers, the 50% of water vapor is available with us. So mixing of air or mixing of gases is prominent in troposphere. Mixing of gases can be happen in two ways. The first is advection and the second is convection. Convection means vertical mixing of air. Advection means horizontal, parallel to the ground, mixing of the air. So these are the phenomena that can be observed in our troposphere. Density gases की जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहेंगे स्पेस में कम होती रहेगी. Understood? In between the troposphere and stratosphere, we encounter a layer known as tropopause. So in tropopause, the mixing of gases will cease, will stop. And above that we have stratosphere. So in that diagram, if you can observe, as we go towards the space or as we elevate from Earth, in troposphere, at every 1 kilometer, the temperature has been rising किस रेट से 6.5 डिग्री सेल्सियस. So at this particular rate, 6.5 डिग्री सेल्सियस per kilometer, the temperature will rise, and this is known as environmental lapse rate या normal lapse rate. So आपको डायग्राम भी देखते रहिए. So this was all about our troposphere. Now at the end we will encounter tropopause, where mixing of gases will stop. After that we have stratosphere. There is a premium quality characteristics of stratosphere. Yes, the ozone layer. So in the lower stratosphere we will encounter the layer of ozone. अप टू आई थिंक 35 किलोमीटर तक हमें मिल जाएगी. एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना रह गया भाई, हमको पीछे जाना पड़ेगा ट्रोपोस्फियर में. द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर. तो ये एक स्टेटमेंट के तौर पे आ सकता है, समझिए इसे. द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर एट पोल्स
is 8 to 10 kilometer, but the same height of troposphere, or you can say tropopause, at equator is 15 to 18 kilometer. Understood? Now combine 2 points. The first point that I have told you this, that height of tropopause is much more, is at much higher altitude on equator or poles. On equator, इक्वेटर पे 15 से 18 किलोमीटर, पोल्स पे 8 से 10 किलोमीटर तक. द सेकेंड पॉइंट इज द एनवायरमेंटल लैप्स रेट. 6.5 डिग्री सेल्सियस हर किलोमीटर पे बढ़ जाएगा अगर हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जा रहे हैं तो. इफ़ यू कंबाइन दीज टू थिंग्स, तब आता है यूपीएससी का क्वेश्चन निकल के. ऐसे ही इन्फरेंस ही आता है. यूपीएससी विल गिव यू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट. द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपॉज एट पोलर रीजन. क्या कहा मैंने? टेम्परेचर ट्रोपोपॉज पे हम दो टेम्परेचर दो ट्रोपोपॉज पे कंपेयर कर रहे हैं. एक ट्रोपोपॉज है हमारे पास पोल पे, एक ट्रोपोपॉज है हमारे पास इक्वेटर पे. हमको दोनों का टेम्परेचर इक्वेट करना है. तो यूपीएससी बोल रही है कि जो इक्वेटर पे ट्रोपोपॉज है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा सिवाय पोल से. ठीक है, ये स्टेटमेंट सुन लीजिए, यही मैंने अभी बोला है. और अगर इधर उधर हो गई होगी तो अभी लेटेस्ट वाली स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए. यूपीएससी ने आपको क्वेश्चन में पूछ लिया है कि टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर इज मोर देन द टेम्परेचर एट ऑफ ट्रोपोपॉज एट पोल्स. सो दिस इज करेक्ट और नॉट. अगर आपने ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझे हैं तो अब थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं. अच्छा, मैंने एक पॉइंट गलत बता दिया आपको. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है. ठीक है, बढ़ता नहीं है, कम होता है. सो ट्रोपोपॉज में, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं हम, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं भाई, अगर आप एक तो हो मान लीजिए यूपी में हो तो डेट इज़ अ प्लेन एरिया, और एक हो आप जम्मू कश्मीर हिमाचल में हो तो माउंटेन पे हो तो ज़्यादा ठंडी लगेगी. समर्स में भी आपको वहाँ ठंडी लगेगी. तो जैसे जैसे वी एलिवेट फ्रॉम द अर्थ द टेम्परेचर starts decreasing at a particular rate known as environmental lapse rate. कितना होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. तो इतने से घटता रहता है. 1 किलोमीटर और ऊपर गए 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, 1 किलोमीटर और 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. तो ये था. अब आते हैं हमारे पूरे कंसेप्ट पे. जैसे जैसे दीज आर पोल्स, दिस इज आवर इक्वेटर. मैंने बताया यहाँ आपको दूरी तय करनी है 18 किलोमीटर, यहाँ आपको दूरी तय करनी है 10 किलोमीटर. भूल जाइए अपनी कॉमन सेंस लगाना कि इक्वेटर पे तो भाई गर्मी होती है और पोल्स पे ठंडी होती है, तो टेम्परेचर एट पोल्स विल बी मच लेस, चाहे वो ट्रोपोपॉज हो चाहे ग्राउंड हो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. ये देखिए, एनवायरमेंटल लैप्स रेट हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. अब एक ही आदमी है, वो एक बार यहाँ से स्टार्ट करेगा, एक बार यहाँ से स्टार्ट करेगा. इन द फर्स्ट फेज ही हैज़ टू गो अप 18 किलोमीटर. तो हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा. तो 18 इंटू 6.5 देख लेना कितना कम होगा. वही आदमी पोल्स पे चले गया ट्रेन से, और तब अब एलिवेट होगा. कुछ किसी में बोल दो हॉट एयर बैलून पे एलिवेट हो रहा है इधर, तो अब जाएगा वो 10 किलोमीटर की हाइट पे और उसे ट्रोपोपॉज मिल जाएगा. तो 10 इंटू 6.5 कौन सा बड़ा होना चाहिए? यस, ये वाला बड़ा होना चाहिए. इट मीन्स द टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड बाई मोर अमाउंट. 18 इंटू 6.5, द टेम्परेचर हैज़ बिन रिड्यूस्ड बाई मोर अमाउंट एट इक्वेटर. सो ये जो स्टेटमेंट थी वो गलत थी. द सही स्टेटमेंट, द करेक्ट स्टेटमेंट इज टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपॉज एट इक्वेटर इज मच लेस देन द टेम्परेचर ऑफ ट्रोपोपॉज एट द पोल्स. ये था पूरा डिस्क्रिप्शन. अब वापस जंप कर देते हैं ट्रोपोपॉज के उस पार, तड़ी पार, स्ट्रेटोस्फीयर में. इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, like up to 35 kilometer, we will find a layer known as ozone layer. The quality of this ozone layer as well as the important significance of this ozone layer is that
It has the ability to reflect back most of the UVs, UVA, UVB, UVC, ultraviolet की बात कर रहा हूँ मैं, back to the space. And we all know with the help बोलेंगे, with the help of these ultraviolet we acquire some most life threatening diseases. तो ओजोन लेयर इतनी हेल्पफुल है, पर ह्यूमंस का क्या नेचर है, जो भी चीज़ यूज़फुल है, जो भी चीज़ अच्छी लग रही है, वो भाई अच्छी लग रही है तो तोड़ लेते हैं. गुलाब अच्छा लग रहा है गार्डन में तो तोड़ लेते हैं, अपने पास ही रखते हैं. तो ह्यूमंस ने क्या किया, अपनी नीड के लिए क्या किया, डिटर्जेंट फैक्ट्रीज खोल ली है, रेफ्रिजरेटर फैक्ट्री खोल ली है. उसमें ये यूज़ करते हैं क्या, यस, द ODS. थोड़ा थोड़ा एनवायरमेंटल भी रिलेट होगा. ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. नाउ द ह्यूमंस हैज क्रिएटेड सच सब्सटेंसेस दैट विल डिप्लीट द ओजोन लेयर. कहाँ है, जो लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में. एग्जाम्पल क्या है, ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन और ब्रोमीन, दीज आर द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. अंडरस्टूड. तो इन सारों ने ये बना दिया. कैसे, ये डिटर्जेंट में यूज़ होते हैं, देन ये ACs में यूज़ होता है एज अ कूलेंट, रेफ्रिजरेशन यूनिट्स में एज अ कूलेंट ये सारे यूज़ होते हैं. एरोजोल इंडस्ट्री, हमने पिछले बार पढ़ा था एरोजोल, तो एरोजोल इंडस्ट्री में भी ये सब यूज़ होते हैं. तो फिर 1984 या 5 देख लेना एक बार. फिर क्या किया, बाद में अकल आई तो 1984 या 5 है, देख लेना आप. तब आई हमारे पास वियना Convention. So Vienna Convention is regarding the ozone depleting substances or reduction of ozone layer. Convention is just a general agreement. सारी कंट्रीज इससे सहमत हैं, हमारे पास ये प्रॉब्लम सामने है and we have to tackle this problem. But all the specific detailed arrangements is done by a protocol. Then 1989 में ही हमारे पास आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस वियना कन्वेंशन. सो अगर आपसे पूछ लिया वियना कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद व्हाट, डील्स विद ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. सो व्हाई द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वी हैव पुट अ बैन इन द कंपाउंड्स कंटेनिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड रिप्लेस देम विद अ वेरी useful byproduct. Byproduct mean the parallel of these compounds, that is HFC, hydrofluorocarbons I think. तो उस टाइम जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ तो हमने क्या बोला कि भाई इंडस्ट्रीज आप बंद कर दीजिए कंपाउंड बनाना क्लोरीन और ब्रोमीन का, बिकॉज वी हैव कम अप विद अ न्यू कंपाउंड नोन एज HFC. तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं है. HFC इज नॉट अ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस. बट बाद में 2014-15 के बाद हमें कुछ चीज़ रियलाइज़ हुआ. ये जो हमने आतंकी घड़ा भरा है, HFC बना दिया है और हम इतने देर से क्लेम कर रहे थे हमने ODS हम हटा देंगे, ये आतंकी घड़े में ये क्या है, सुपर GHG, सुपर ग्रीन हाउस गैस. हैंस थोड़ी सी हमें फिर से अकल आई, मानना नहीं है, कुछ ना कुछ कंपाउंड लाएंगे वापस फिर एक प्रोटोकॉल साइन करेंगे, मानेंगे नहीं. तो फिर आया किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. आई थिंक एक बार डेट देख लेना, 2016 का है, आप देख लेना एक बार. नाउ इन दिस किगाली एग्रीमेंट हमने क्या बोला कि भाई काम नहीं चलेगा, ये HFC को बैन करो. समझिए भाई. अब इन्फ्रेंस स्टेटमेंट निकालिए. UPSC नाउ विल आस्क यू दैट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद द बैन ऑफ ODS ओनली. अगर ये दे दिया फिर आपके पास स्टेटमेंट है वियना कन्वेंशन एज वेल एज, चलो वियना कन्वेंशन हटा दो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विद द बैन ऑफ ODS ओनली. सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट और नोट? नो. व्हाई? बिकॉज किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडिड द बैन ऑफ HFC ऑल्सो, एंड HFC इज नॉट अ ODS बट अ GHG. समझ में आ गई सारी बात. तो ऐसे इन्फ्लुएंस निकालेगी UPSC. One premium quality of stratosphere.
नॉर्मली हमने देखा जितनी हम हाइट पे चले जाएंगे, एक ज़मीन है, एक हम पर्वत पे हिमाचल में चले गए, हमें ठंडी लगेगी। इसका मतलब एज वी इंक्रीज द एलिवेशन फ्रॉम द अर्थ द टेम्परेचर विल डिप डाउन, विल डिक्रीज। बट दिस इज द क्वालिटी इन स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज ऑफ दिस because of this layer of ozone, the temperature will rise with respect to height। तो आप अपने वापस ग्राफ में जाइए, अपने वापस ग्राफ में देखिए, अगर ये ग्राफ है, नीचे डिग्री सेल्सियस है, यहाँ किलोमीटर है। ट्रोपोस्फियर जहाँ से भी स्टार्ट होगा वो जाएगा कम, टेम्परेचर कम जाएगा, ट्रोपोपॉज आएगा, देन स्ट्रेटोस्फियर में ज़्यादा जाएगा, देन इसके आगे आ जाएगा हमारे पास यहाँ स्ट्रेटोपॉज। ऐसे ही मीजोपोज आएगा। हम हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, मैंने सारी स्टोरी आपको बता दी। तो लास्ट चीज़ इज इन द स्ट्रेटोस्फीयर द टेम्परेचर विल इंक्रीज विद एलिवेशन। ऑल द एरोप्लेन्स विल फ्लाई कहाँ? इन द स्ट्रेटोस्फीयर बिकॉज देयर इज ऑलमोस्ट नो क्लाउड्स और वेदर फिनोमिना इन स्ट्रेटोस्फीयर। थोड़े से क्लाउड्स आ जाएंगे, जैसे सीरस क्लाउड्स हैं जो सबसे हाईएस्ट क्लाउड्स हैं, वो कुछ कुछ आ सकते हैं, बट in general sense there are no clouds in stratosphere. That's why all the airplanes, the commercial flights will fly in this particular stratosphere। जैसे ही एरोप्लेन की बात याद आई, एकदम से दिमाग खटका। इन ट्रोपोस्फियर, इन द अपर ट्रोपोस्फियर, आई थिंक 12 to 15 किलोमीटर मान लीजिए, इक्वेटर भी बात करूँगा ऑफकोर्स। तो ट्रोपोस्फियर में, अपर ट्रोपोस्फियर में देर इज अ stream of air that is flowing continuously around the earth, that is known as jet streams। इसको बहुत नाम से पुकारते हैं, रॉसबी वेव्स, जेट स्ट्रीम्स, बट ये हमारा टॉपिक लेटर ज्योग्राफी में, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे। बट इतना याद रखिए, यस, ट्रोपोस्फियर में जेट स्ट्रीम्स भी पाई जाती है, अपर ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में एनवायरमेंटल लैप्स रेट हमने देख लिया, तो नेगेटिव एनवायरमेंटल लैप्स रेट होता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। Again in mesosphere temperature will dip down, and it is the coldest layer है। all the meteors will burn here। जो भी meteor या कंकड़ पत्थर स्पेस से हमारे अर्थ में आते हैं, कहाँ बर्न होंगे? मेसोस्फीयर में बर्न हो जाएंगे। स्ट्रेटोस्फीयर में बता दिया मैंने, नेगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट, देन ओजोन बताया मैंने, यहाँ कमर्शियल फ्लाइट से ही उड़ेंगी। मेसोस्फीयर इज कोल्डेस्ट लेयर एंड meteors विल बर्न। थर्मोस्फीयर, इट इज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ थर्मोस्फीयर इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स नोन एज आयंस। अगर आयंस है तो इसका यूजफुलनेस बताओ, इस लेयर का यूजफुलनेस बताओ। जो पर्टिकुलर लेयर आयंस की बनी होती है इन द थर्मोस्फीयर इज नोन एज आयनोस्फीयर। और आयनोस्फीयर की यूजफुलनेस क्या है? यस, दे विल सेंड बैक रेडियो वेव्स। एक और चीज क्या होगी आयन से? द सोलर फ्लेयर्स ऑफ द सन विल गेट हिट बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। तो क्या क्रिएट होनी चाहिए बताओ? पता है आपको क्या क्रिएट होनी चाहिए? यस, द नॉर्दर्न एंड सदर्न लाइट्स। तो उनको क्या बोलते हैं?
अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो भाई कहाँ नॉर्थ की कौन सी, साउथ की कौन सी है? ठीक है, ऊपर वाली नहीं पता तो नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया तो पता है। सो अरोरा ऑस्ट्रेलिस इन सदर्न हेमिस्फीयर एंड अरोरा बोरियलिस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो दीज आर कलरफुल लाइट्स, ये जो आसमान में दिखते हैं, और पहलों के लोग इन्हें ही गॉड मान लेते होंगे। तो वहाँ से अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि कैसे कैसे रिलीजन की उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ। सो we have talked about the thermosphere. In thermosphere also it will behave as the layer of stratosphere. It means again the temperature will rise. Understood? And the last is the exosphere. So gradually the atmosphere will merge into the outer space. Exosphere में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर ख़त्म हो चुका है। But one will not feel the temperature, the level of temperature. Why? Because the gas particles or the air particles are in such a thin amount that you will not feel anything. क्यों भाई? हमें हीट क्यों लग रही है? क्योंकि हवा गर्म हो रही है, और हवा गर्म हमें लग रही है तब हमें हीट फील हो रही है। अगर बीच में कोई हवा ही नहीं है तो हमें कैसे होगी? इसका मतलब क्या वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है? नहीं, वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, पर हम नॉर्मल थर्मोमीटर से वहाँ नाप नहीं पाएंगे। ठीक है, सो इतना पहले ऑब्जर्व कीजिए। तो मिटा देते हैं, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ख़त्म हो चुका है। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इंसोलेशन। एक जाते एक और पॉइंट उठा ले जाइए। इन द मेसोस्फीयर देयर इज़ अ पर्टिकुलर लेयर नोन एज करमान लेयर। तो वो करमान लेयर हमको मेसोस्फीयर में मिलती है, बस इतना सा याद रखना। ठीक है, तब तक अगर आपको कलाकारी पसंद आई है, डिफरेंट मार्कर से आपके दिमाग में ज़्यादा बैठ रहा है, तो कमेंट करके बता देना कि प्लीज़ यूज़ डिफरेंट मार्कर्स, कलरफुल मार्कर्स, ताकि आपको ज़्यादा रिटेंशन पावर हुई। तो ठीक है, jokes aside, but if you are getting your concepts clarified, please give this video a thumbs up, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक ले गुड बाय, जय हिंद।